Hi students, in this lecture we are going to solve some question of this HDA chapter. In last lecture we studied about how we can prepare alkyl halide from different methods, that is from alcohols, from alkanes, that is hydrocarbon in alkanes from in hydrocarbon from alkanes as well as from alkenes, and then halogen exchange, Finn-Kelleston reaction as well as the Swartz reaction. Now we are going to solve example which is given in the NCERT textbook. Example, solve example 10.4 and then in-text question. And I always recommend, when you are learning something, when you are reading something, and you want to know everything about that topic, you must solve some question related to that topic, because those questions, even though if you are solving those questions and maybe those questions are all 5 questions, you are solving 5 questions and all 5 questions are wrong, that doesn't matter. But when you will solving the questions, you are getting something, and when all questions are wrong, and then you have to analyze those questions, you have to go for the solution of those questions. And when you will go through the solutions of those 5 questions, then you will realize that now I have 50% knowledge about that topic. I know something about that topic. Not 50%, तो कम से कम कुछ तो मुझे पता चल गया. फिर आप उसको, अगर आप 2-3 दिन के बाद अगेन यू आर गोइंग फॉर रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक एंड यू विल सॉल्व दोज 5 क्वेश्चंस और 5 more questions other than those questions, now you have some logic to apply for solving those questions, and that is important. Once again I am saying to you, whatever you are reading or learning, for that you have to do the practice. When you are going to apply, when you solve some question related to that topic, that is going to do wonder. You will believe this when you will do the practice. And one more thing I would like to share to all of you, that this 12th, 11th and 12th, I have always talked about this, that when you are 11th and 12th, this is very important junction of your study, because after 11th and 12th you are going to, after 12th you are going to do some specialization in some subjects, or you will go in technical line or in medical or whatever you want to go, wherever you want to go. But one thing will be common in each and every field, that is the learning process through practice. Reading something is one part, that is, if you are reading something, you are not getting anything. You are just reading, you have no intention for learning. But when you are studying those things, means you have some intention, you have some, you want to do something in that topic. Studying and reading both are different things. You have read a lot of things till 11th or 12th, but I know that आपको सब कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी, याद नहीं होंगी, बट जो आपने दिल से याद किया होगा, जो आपने पढ़ा होगा, जिसको आपने अप्लाई किया होगा, जिस पर आपने प्रैक्टिस की होगी, वो 9th का भी अभी आपको याद होगा, 10th वाला भी याद होगा, 11th वाला भी याद होगा. ठीक है. और इस टाइम पे जब आप घर पे बैठे हो और आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो बेटा एक बनाओ टाइम टेबल कि भाई मैं 4 to 5 लेक्चर करता हूँ, 10 to 11 लेक्चर अटेंड करता हूँ कॉलेज का या स्कूल का, और उसके बाद इन 2 घंटे के बाद मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ. और थोड़ा सा अपने को मोटिवेट करो, अपने को एक बार टाइम दो 10 मिनट का कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे जाना है. और जैसे आप इसको सोचना स्टार्ट करोगे ओनली फॉर 10 मिनट्स कि मुझे क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है, तो आप अपने में एक ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हो. फिर आपका दिल लगेगा पढ़ाई में, मन लगेगा, जो भी आपको करना है. और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में जो कंपटीशन, उसमें स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है. स्किल्ड लेबर, स्किल्ड, हम सभी लोग वर्कर और लेबर हैं. सभी लेबर का मतलब अपना सब काम कर रहे हैं, वर्कर है. बट स्किल्ड जितने ज़्यादा होंगे, आपके पास स्किल जितनी ज़्यादा होगी, वो किसी भी फील्ड की हो सकती है.
उतने ज़्यादा आप क्या होंगे, आपकी ब्रांड, आपकी एक वैल्यू होगी मार्केट में, आपके घर पे, आपके आस पड़ोस में, और आपके खुद के लिए एक ब्रांड होंगे आप अपने खुद में। और वो ब्रांड बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए बहुत, आप कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हो, आप कोई सामान खरीदने जाते हो, तो आपके दिमाग में चलता है अरे यार ये वाला चाहिए मुझे, ऐसा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वो एक दिन में हुआ होगा? क्या उसके लिए एक रातों रात वो ब्रांड आ गया होगा? नहीं, उसके लिए सालों साल की मेहनत है, लॉट्स ऑफ आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं, स्किल्ड वर्कर उसके पीछे लगे हुए हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट पीपल लगे हुए हैं, तब जाके वो ब्रांड बना है। ठीक है, तो अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है, आपको कहाँ पे देखने का है, एक साल के बाद आप क्या करना चाहते हो, तो आप 10 मिनट अपने को भी टाइम दो, और जैसे आप टाइम देना स्टार्ट करोगे, बिलीव मी, आप उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेट करो अपने को, थोड़ा अपने को रिफ़्रेश करो। जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को रिफ़्रेश करते रहते हो, देखते रहते हो, कुछ चीज़ें जो जंक बोलते हैं ना कि हाँ यार ये बेकार है, इसको बार बार रिपीटेशन, तो उसको डिलीट करो, फिर से अपने को रिफ़्रेश करो, फिर से अपने को मोटिवेट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और यूट्यूब पे अगर आपके पास मोबाइल है, सारी सुविधाएं हैं, और तो आप यूट्यूब पे जाके ढेर सारे वीडियोस, बहुत एक ही टॉपिक पे, बेटा ये HDA पे अगर आप ओपन करोगे तो 2000 आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बट वो नहीं, आप एक ही फॉलो करो, आप एक फॉलो करो, बेसिक्स से पहले बेसिक्स क्लियर करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको जो सॉल्व करना है सॉल्व करो। बट आप वीडियो देख के, आधा घंटे वीडियो देख लिया, किसी का 1 घंटा देख लिया, उससे कभी तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। और फिर आप इधर से कूद के उस वीडियो से जाओगे, उनका अच्छा लग रहा है, उनसे वीडियो उनको अच्छा लग रहा है, तो सभी लोगों ने, सबके पास अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, अपना, दे हैव देयर ओन वे ऑफ टीचिंग। आपको कुछ उनमें अच्छा लगेगा, कुछ उनमें अच्छा लगेगा, बट सभी सब टॉपिक में मास्टर नहीं है। ओके, सो आप एक पकड़ के रखो, बेसिक्स पकड़ के रखो, पहले बेसिक क्लियर करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, NCERT पढ़ो, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। एक ही बुक को, एक ही टॉपिक को आप एक ही लोगों से पढ़ के उसको बार बार आप प्रैक्टिस करके उसकी मास्टरी करो। बट आप ओपन करते हो यूट्यूब, लाखों वीडियोस देखते हो, आधे घंटे में थक जाते हो, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद वही टाइम वेस्ट होता है, फिर उसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। तो उससे आपका भी, आपकी अपना अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग, इतना आपका ब्रॉड माइंड नहीं है कि आप फटाक से पढ़ोगे और एक ही दिन में समझ में आ जाएगा। हाँ, इसलिए मैं बोला प्रैक्टिस चाहिए अपने को। ठीक है, थोड़ा मोटिवेट करो अपने को, रिफ़्रेश करो, 10 मिनट दो अपने को किसी भी टाइम पे, सुबह या शाम को, एंड देन फिर स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई, लग जाओ काम पे। ओके, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। तो HDA का ये कंटिन्यू है, जिसमें हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस लेक्चर। सो एग्जाम्पल 10.4 जो आपकी NCERT बुक में है, टेक्स्ट बुक में है। सो फर्स्ट you have this benzene ring like this, then there is a structure like this, H double bond, then H, and here H also, plus HBr. Write the product. ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट राइट करने का। राइट द प्रोडक्ट, राइट द प्रोडक्ट। सो आप देखो बेटा, आप, मुझे लगता है आप आराम से बता सकते हो प्रोडक्ट। यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे मुझे HBr ऐड करना है। HBr क्या इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है? नहीं। सो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर ये HBr है बट पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स दिस इज गोइंग टू फॉलो व्हाट, मार्कोनिकॉफ रूल। एंड मार्कोनिकॉफ रूल को अगर आपको अच्छे समझना, मैंने वीडियो बनाया। सो HBr, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब आपका जो Br माइनस है, जो Br है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो ये कार्बन, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है। इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन किसके पास कम है, इस कार्बन के पास कम है, तो आप Br यहाँ पे ऐड करोगे और H यहाँ पे ऐड कर दोगे। ओके, क्लियर? ओके, तो ऐड कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, फिर आप लिखोगे यहाँ पे, आप C भी लिख सकते हो, H हो गया, और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया आपने, Br, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ब्रेक हो जाएगा, और फिर कितना, ऑलरेडी इसके पास कितने हाइड्रोजन थे,
2 हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट भी क्या लिख सकता हूँ मैं, हाँ आप दूसरा प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। ऐसा उन्होंने मेजर माइनर तो आपसे बोला नहीं कि मेजर और माइनर बना दो, तो आप ये मेजर लिख दिया इसको, क्योंकि आपको पता है ये मार्कोनिकॉफ फॉलो कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट तो वो 2 बनने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा बनेगा बेटा, ये देखो जरा, दूसरा कौन सा बनेगा, फिर मैं यहाँ पे इसके प्लेस पे पीएच लिख देता हूँ तो भी चलेगा, इसके प्लेस पे थोड़ा सा स्पेस अपने को मिल जाएगा। और यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया क्या, एच। अभी मैं एच यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, एच, और फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर एच एच, और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम लोग, बी आर, और ये माइनर मैंने लिख दिया। तो ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा, बट मेजर और माइनर किसके बेस पे डिसाइड होने वाला है, दैट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। ओके ओके, तो मेजर एंड माइनर मीन्स आप दोनों प्रोडक्ट बनाओ। उन्होंने प्रोडक्ट पूछा आपसे, अगर वो मेजर और माइनर आपसे पूछते तो आप मेजर माइनर भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ मेजर और माइनर किसके बेस पर डिसाइड करोगे बेटा, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ, सिंस देर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली एच बी आर and this is unsymmetrical alkene, so you have to write down 2 products, one will be major and minor, one will be minor. Major product will be decided on the basis of Markovnikov rule. Okay, next question देखो आप, second one, CH3 CH2 CH double bond CH2 and plus HCl। ठीक है बेटा, so again you have this unsymmetrical alkene and you have this HCl, तो partial negative हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, partial positive. So again you will get 2 products, but if you want to make only want to form or write only major product, then you have to follow what, Markovnikov rule, and according to Markovnikov rule the negative part of the reagent attached to that carbon of the double bond which has less number of hydrogen. So we get this CH3 CH2 CH Cl and then CH3, and this is major product. Even you can write minor product also, but now I know that you guys are getting the point, so you can write both product, but you have to decide major and minor on the basis of by yourself, means you have to decide by yourself कि कौन सा मेजर और कौन सा माइनर होगा। उसके लिए आप आराम से ये मैंने जो बताया उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों नहीं लिख रहा हूँ। नाउ just look question number 3, third one, you have this benzene ring, you can look here, you have this benzene ring bonded to CH2 CH double bond CH2, and this is plus HBr and plus peroxide HBr peroxide, सो एच बी आर प्लस पेरोक्साइड। तो यहाँ पे देखो आप, एच बी आर है बट पेरोक्साइड है, इट मीन्स you have to, the major product will be decided on the basis of what बेटा, the major product will be decided on the basis of anti Markovnikov rule। AMR का मतलब anti Markovnikov rule। ओके, सो यू कैन राइट बोथ प्रोडक्ट्स। आप मतलब एच बी आर को इस पोजीशन पे भी ऐड करो और एक बार इस पोजीशन पे, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। बट अगर आपको कोई पूछेगा मेजर कौन होगा बेटा, माइनर कौन होगा, तो आपको क्या देखना कि भाई एच बी आर किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड, तो क्या फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट आप लिखोगे, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो now I'm going to write that product, major product only. So according to this anti-Markovnikov rule, the negative part of the reagent attached to that carbon of the double bond which has more number of क्या, हाइड्रोजन एटम्स। सो मैं इसको अलग से चेंज कर देता हूँ, मतलब H मैंने देखो बेटा यहाँ पे ऐड किया है और बी आर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये बी आर यहाँ पे ऐड किया इस कार्बन पे। तो आप थोड़ा सा मैं इसको, हाँ अभी आप देखो ज़रा, ये आपका कार्बन था। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स ये आप क्या फॉलो कर रहे हो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये वाला
मेजर प्रोडक्ट होगा. So according to anti-Markovnikov rule, the negative part of the reagent attached to that carbon of the double bond which has more number of hydrogen, and that will be major product. That will be क्या बेटा? Major product. That will be major product. Clear to all of you? डाउट होगा तो आप बोल देना, ठीक है? आप कमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन. सो इंटेक्स क्वेश्चन में इंटेक्स क्वेश्चन 10.2, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI. ये आपको ऑलरेडी इसमें आप चैप्टर के बाद दिया हुआ उसका आंसर, तो आप आराम से देख सकते हो. जो H2SO4 जो होता है, H2SO4 10.2 बता रहा हूँ मैं. H2SO4 is an oxidizing agent. Is an oxidizing agent. ये पढ़ा है मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर प्रेजेंट रहता है H2SO4 सॉल्यूशन में, तो ये जो है वो KI को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? HI में. ठीक है, KI को किस में कन्वर्ट कर देता है? HI में. और इसकी वजह से इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ नहीं हो पाता इस KI का. जो आप मतलब आप हैलोजन रिप्लेस करना ये OH रिप्लेस करना चाहते हो आयोडीन से, वो नहीं हो पाता क्योंकि वो HI फॉर्म करता है और फिर ये रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है. तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम इसके प्लेस पे दूसरा कंपाउंड यूज़ करते हैं. तो आप उसका आंसर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. नेक्स्ट, अभी हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.3. ओके, 10.3. Write structures of different dihalogen derivative of propane. Write structures of different dihalogen derivative of propane. So you have propane means ये देखो आप CH3 CH2 and CH3. तो आपसे इससे डायहैलोजन वाले कंपाउंड बनाने, मतलब इसमें 2 हैलोजन ऐड करने. तो आप 2 हैलोजन कौन कौन से पोजीशन पे ऐड करोगे और कितने कंपाउंड बना सकते हो? तो आप देखो जरा कैसे बनाओगे आप. तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ CH3 CH2, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने 2 हैलोजन, CL मान लेते हैं, हैलोजन मैंने ऐड किया, एक कंपाउंड हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया. ऐसे ही दूसरा कंपाउंड बनाते हैं. अब ये देखो जरा CH3 CH यहाँ पे एक Cl ऐड कर दिया और एक CH2 और एक Cl ऐड कर दिया. हाइड्रोजन हटा के ऐड करेंगे भाई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है. 2 बना दिए मैंने. अभी नेक्स्ट देखो, थर्ड वन देखो आप. थर्ड वन में क्या बेटा? CH3C. अब यहीं पे एक दोनों Cl यहीं पे ऐड कर दिया, तो ये भी तो डिफरेंट है. हाँ, डिफरेंट है ना. ठीक है, तो अब ये मैं बना रहा हूँ, देखो जरा आप बताना ये डिफरेंट है कि सेम ही है. CH2Cl एंड CHCl एंड CH3. अब इसकी मैच हो रहा है क्या किसी से? हाँ मैच हो रहा है, इसी से मैच हो रहा है. देखो इसी को मैंने, इसको, ये दोनों सेम ही है ना. पहले पोजीशन पे Cl है, Cl यहाँ पे भी पहले पोजीशन पे, यहाँ पे दूसरे पे Cl है, यहाँ पे Cl, मतलब ये दोनों सेम ही है. तो मैं इसको लिखूँ या इसको लिखूँ, दोनों से. तो 3 मैंने बना ली. और कोई पोजीशन है जो आपको दिख रहा है कि आप वहाँ पे बना सकते हो? एक आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर से अगर इधर ऐड ना करके यहाँ पे ऐड करोगे तो भी सेम आएगा. तो एक ये हो गया, फिर एक इस पोजीशन पे ऐड कर दिया और एक आपने एडजेसेंट पोजीशन पे ऐड कर दिया. एक और हम लोग ट्राई कर सकते हैं, कैसे देखो ज़रा, ये हम एक और ट्राई कर सकते हैं. फोर्थ वन कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CH2Cl CH2 एंड CH2Cl. यहाँ पे मैंने 2 हैलोजन ऐड किए हैं, बट दोनों डिफरेंट है ना. सो दिस इज, ये डिफरेंट है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे क्या बेटा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे क्या है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे क्या 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन. ठीक है, मैंने 4 बना दिए स्ट्रक्चर डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन. आप ट्राई करना है इसको, अगर आपको लगता है और भी आप बना सकते हो तो आप बनाओ. हाँ, इसका आप IPAC नेम ट्राई करो. क्या करना है आपको? लिखना है IPAC, राइट IPAC नेम. ओके, नाउ नेक्स्ट
Next, now we are going to solve 10.4. First, among the isomeric alkane of molecular formula C5H12, identify one that on photochemical chlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochloride, 4 isomeric monochloride. आपको बताना है, आपको C5H12 जो अल्केन है, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एन अल्केन है, उसके आइसोमर बनाने हैं। फिर उसमें आइसोमर में आपको फोटोकेमिकल या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट के प्रेजेंस में आपको क्लोरीनेशन करना है, एक ही क्लोरीन ऐड करना है। और आपको जो आप आइसोमर बनाओगे इस C5H12 की, उसमें से बताना कि कौन सा आपका जो आइसोमर है इस मॉलिकुलर फार्मूले का वो केवल एक सिंगल मोनोक्लोराइड बनाएगा, किसमें आप 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बना सकते हो, किसमें आप 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बना सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया, जिसमें आपने C5H11Br का आपने स्ट्रक्चर बनाया था और उसमें आपने बोला था कितने आप अल्काइल हैलाइड और ब्रोमाइड बना सकते हो, तो आपने 8 बनाया था। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपका काम हो गया, ठीक है। सो नाउ यू हैव दिस C5H12. सो फ्रॉम दिस C5H12 से क्या बनाना है सबसे पहले बेटा आपको? आइसोमर्स। इसके कितने आइसोमर बना सकता हूँ मैं? 3 आइसोमर। 1 बाय 1 मैं बनाता हूँ, ठीक है। सो मैं 3 आइसोमर बना देता हूँ। आप देखो जरा, फर्स्ट कौन सा होगा बेटा? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मैं हाइड्रोजन ऐड नहीं करता, तो भी आपको समझ में आ जाएगा मुझे लगता है। हाइड्रोजन ऐड नहीं करूँगा तो भी ना, क्लियर है ना, ठीक है। ये फर्स्ट है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल पेंटेन। वाई वी आर सेइंग दिस नॉर्मल? बिकॉज देर इज़ नो ब्रांचिंग, देर इज़ नो साइड चेन। सेकेंड क्या बेटा? सेकेंड भी आपको पता है, बस मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ। 1 2 3 एंड 4। पहले 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना, अभी 4 कार्बन का, तो एक कार्बन बाकी है, उसको कहाँ पे ऐड करोगे? एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट में ऐड नहीं करना। कहाँ पे ऐड करना है? इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। तो हमारे पास ये पोजीशन ऐड करूँगा तो भी चलेगा, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने कार्बन ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सा कार्बन है भाई? ये कौन सा, सॉरी, आइसोमर है। ये कौन सा आइसोमर है? आइसो। आपको याद होगा आइसो, देखो ना, सेकंड पोजीशन पे आपने CH3, ये CH3 तो है ना। सभी हाइड्रोजन आप समझ के रखो, आइसो क्या बोलेंगे इसको? आइसोपेंटेन, कॉमन नेम, हाँ आइसोपेंटेन, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन हटा देता हूँ, आप C दिखाओ तो भी देखो, ये CH3 है, ये CH3 है, ये सब CH3, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। बाकी तो आपको बैलेंस का, मुझे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है और फिर उसमें वो कन्फ्यूज़ होके परेशान हो जाते हैं फिर, ठीक। ये 2 मैंने बना दिए, अब तीसरा देख लो आप, थर्ड वन क्या बेटा? अब कितने कार्बन का लॉन्गेशन बनाओगे? 3 कार्बन का। अभी 2 कार्बन बाकी है, तो एक कार्बन आपको ऊपर ऐड करना और एक कार्बन नीचे। दोनों को एक साथ नहीं ऐड करना है, दोनों को एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट पे ऐड नहीं करना है। सो वी गेट अ न्यू कंपाउंड विच इज़ नोन एज, आई नो दैट दिस इज, यू नो अबाउट दिस, दैट इज नोन एज नियोपेंटेन, सॉरी, नियोपेंटेन। सो you have, now you have 3 isomers. Now you have 3 isomers of this C5H12. C5H12 के आपके पास 3 आइसोमर है, दिख रहे बेटा? कौन सा? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब ये उन्होंने बोला कि आपके पास ये जो आइसोमर आपने बनाया C5H12 के, इसका मोनोक्लोरिनेशन करना है, मतलब एक क्लोरीन ऐड करना है। तो जब आप, कौन सा ऐसा, इन तीनों में से कौन सा ऐसा आइसोमर है जो क्लोरीनेशन करने पे केवल एक सिंगल मोनोक्लोराइड बनाएगा, मतलब एक ही कंपाउंड बनाएगा मोनोक्लोरिनेशन करने पे, मतलब क्लोरीन ऐड करने पे केवल एक ही मोनोक्लोरिनेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा ऐसा आइसोमर है जो क्लोरीनेशन करने पे, मोनोक्लोरिनेशन करने पे 3 कंपाउंड बनाएगा? कौन ऐसा आइसोमर है जो मोनोक्लोरिनेशन करने पे 4 कंपाउंड बनाएगा? इसमें से, इन तीनों में से कौन है? हम लोग 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने बोला कि कौन इसमें से एक ही बनाएगा। आप जरा ध्यान से देखना बेटा, ये ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे मैं 1 बाय 1 आपको समझा सकूँ, ठीक है। देखो आप, ये देखो, ये फर्स्ट, ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये कितना है? 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो ये दोनों, अब यहाँ पे मैं मोनोक्लोरिनेशन यहाँ पे करूँगा बेटा। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक क्लोरीन में ऐड करना है। तो ये देखो, ये दोनों पोजीशन सेम है, हाँ सेम है, सेम है ना।
इसके बाद ये दोनों पोजीशन सेम है, हाँ सेम है। ये वाला अलग हो गया, देखो ये भी 2 डिग्री है, बट इधर से ये थर्ड पोजीशन पे, इधर से ये थर्ड पोजीशन पे, तो इन दोनों से मैच नहीं करता, इन दोनों से। इसका मतलब है कि जब मैं इसका मोनोक्लोरिनेशन करूंगा, बात को समझना देखा, when you will do monochlorination of this compound you get, अब देखो इन दोनों से कितना मिलेगा मुझे, एक, फिर ये वाले से कितना मिलेगा, एक, और एक थर्ड पोजीशन पे ऐड करूंगा तो एक यहाँ पे मिल जाएगा थर्ड पोजीशन पे। तो टोटल कितने मुझे मिल जाएंगे, यहाँ पे 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा, 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको बात समझ में आई? मैं फिर से आपके लिए इसको बताता हूँ, आप देखना ज़रा। 1 2 3 4 5, ये है बेटा आपका 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री, सेम हो गया। फिर ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी सेम है, क्योंकि ये इधर से सेकंड पोजीशन, ये इधर से सेकंड पोजीशन है। ओके, तो ये दोनों सेम हो गया। और ये भी आपका 2 डिग्री है, बट ये इन दोनों से मैच नहीं करता, क्योंकि ये दोनों इधर से सेकंड पोजीशन पे, बट ये थर्ड पोजीशन पे है। तो अगर मैं इसका मोनोक्लोरिनेशन करूँगा तो कितने प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक बार मैं क्लोरीन जो है वो इस पोजीशन पे ऐड करूँगा, 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड करूँगा या यहाँ पे ऐड करूँ तो 2 क्लोरो मिलेगा, और यहाँ पे ऐड करूँगा तो 3 क्लोरो। तो कितने आप इससे कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना सकते हो, 3। अभी बात समझ में आई? समझ में आई? तो क्वेश्चन आप आंसर क्या बोलोगे, उसने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन बनाएगा, नॉर्मल पेंटेन विल फॉर्म 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, या आइसोमेरिक 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। समझ में आया? आप चाहो तो बना देता हूँ मैं आपके लिए, आप फर्स्ट में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 Cl, 1 2 3 4 5 Cl बेटा ये, एंड थर्ड वन बेटा 1 2 3 4 5 Cl. So this is 1 chloropropane, 2 chloropropane, and this one is 3 chloropropane. तो कितने आपने बना दिया आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 3। किससे बनाया आपने, नॉर्मल पेंटेन से। तो आंसर क्या लिखोगे आप, सेकंड का आंसर लिख सकते हो कि 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स और 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय व्हाट, नॉर्मल पेंटेन। ओके, नेक्स्ट। अब जरा आप आइसोपेंटेन का देख लो आप, आइसोपेंटेन अब ये देखो जरा आप, आइसोपेंटेन में क्या था बेटा, ये देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे आपने ऐड किया था ना। अब देखो जरा, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये कितना है बेटा 3 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री, और ये कितना है 1 डिग्री। तो ये दोनों 1 डिग्री सेम है क्या, हाँ सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों 1 डिग्री और साथ में दोनों 3 डिग्री से अटैच, मतलब सेम टाइप के एनवायरनमेंट में, सेम टाइप के कार्बन में। तो ये दोनों एक हो गए, मतलब इन दोनों पे अगर मैं क्लोरीन ऐड करूंगा तो दोनों पे ऐड नहीं कर सकता, केवल एक ही पे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। तो एक यहाँ से मिल गया, एक 3 डिग्री पे ऐड करूंगा तो दूसरा मोनोक्लोरो यहाँ से मिल जाएगा, एक 2 डिग्री पे ऐड करूंगा तो तीसरा यहाँ से मिलेगा, और एक 1 डिग्री पे, क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री से अटैच है, ये जो 1 डिग्री कार्बन ये 2 डिग्री से अटैच है, तो ये अलग है। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो इससे मैं कितने आइसोमर बना सकता हूँ मोनोक्लोराइड वाले, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स can be prepared by what, by आइसोपेंटेन, मतलब आप आइसोपेंटेन से कितने बना सकते हो, 4 मोनोक्लोराइड्स बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, दैट इज नियोपेंटेन। ये देखो नियोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन। सो दिस इज 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, एंड दिस इज 4 डिग्री, बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे तो मैं ऐड नहीं कर सकता क्लोरीन, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ये देखो, ये सभी 1 डिग्री, ये और ये, ऑल दीज 1 डिग्री कार्बन एटम्स दे आर बॉन्डेड टू 4 डिग्री, मतलब ये सभी चारों क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे क्लोरीन ऐड करो, या यहाँ पे कहीं पे भी, तो सभी पोजीशन सेम है, तो आप कितने बना सकते हो, केवल इससे एक ही कंपाउंड बना सकते हो। आप डिफरेंट पोजीशन पे क्लोरीन ऐड करके उनके नॉमेनक्लेचर लिखो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो केवल एक बनेगा, तो किससे एक बनेगा, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा
कि नियोपेंटेन will form only one monochloride. Okay, got it? Clear to you, all of you, beta? Okay, so it is clear to all of you. If you have any doubt or facing any problem, please let me know in comment box. You can comment me, sir, I am getting or not getting. सभी लोग करो बेटा, अच्छा लगता है, हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा बस कमेंट कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? ओके, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो नहीं समझ में आ रहा सर, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा उसको, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट 10.5, क्वेश्चन नंबर 10.5. So 10.5 first, you have this compound OH, और यहाँ पे क्या लिखा बेटा आपने SOCl2 या प्लस SOCl2 तो भी चलेगा. तो इधर से क्या मिल जाएगा आपको बेटा? आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट है आपका. SOCl2 क्या करता है? आपको प्रिपरेशन का मेथड याद है, Cl ऐड करना है. एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है? एक्स्ट्रा क्या बाहर निकलता है? सॉरी, SO2 और क्या? HCl. दोनों कौन से फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म, मतलब दोनों बाहर निकल जाएंगे, दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं. तो ये अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करने का ये कौन सा है? ये थायोनिल क्लोराइड या थायोनाइल क्लोराइड. और थायोनाइल क्लोराइड से अल्काइल क्लोराइड बनाना क्या है? बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें SO2 और HCl मिलता है जो दोनों गैस फॉर्म में, तो हम इजीली उनको बाहर कर देते हैं, तो और हमें कोई प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्योर होता है. ओके, नेक्स्ट. Next question beta, second one. You have this compound benzene like this, then addition of NO2, and then you have CH2 and CH3. You are adding what? Br2, heat, or you can use light also, UV light. So they are asking for what would be the product. तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? यूवी लाइट में Br2 क्लोरिनेशन करूँ या ब्रोमिनेशन करूँ तो मुझे क्या मिलता है? फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है ना. फ्री रेडिकल क्या फॉर्म होता है? फ्री रेडिकल. तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, तो मैं कहाँ पे ऐड करूँ? इस पोजीशन पे ऐड करूँ या इस पोजीशन पे ऐड करूँ? तो डिपेंड करता है ना मेजर और माइनर कौन सा बनेगा. तो आप दोनों पोजीशन पे ऐड कर सकते हो, बट आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है. तो अगर आप सोचो, एक बार आप सोचो ज़रा, मैं इसको बनाता हूँ फिर से, इसको छोटा थोड़ा करके, या फिर आपको जैसे दिखे दोनों साथ में. और अभी देखो ज़रा, मैंने फिर से यहाँ पे बेंजीन लिखा, यहाँ पे NO2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2. Br मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. तो अब ये जो Br है ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये जो Br है वो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया. अब दूसरा देखो, मैं दूसरा भी लिख देता हूँ. एक बार आपने Br यहाँ पे ऐड किया है, प्लस फिर यहाँ पे देखो CH, Br मैंने यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3. तो ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ से, यहाँ पे भी कार्बन से अटैच है, यहाँ पे और यहाँ पे. कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री. आपको पता है कौन सा अल्काइल हैलाइड कितना, कौन सा 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है कि 1 डिग्री? तो 1 डिग्री. तो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट. और उसको आप मैकेनिज्म के थ्रू भी, आपको पता है ना, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री. ठीक है बेटा? तो इसमें भी वैसे ही बनता है 2 डिग्री और 1 डिग्री. बट आप नॉर्मल सा इसको समझ लो, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे बनता है वो भी अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ. देखो ज़रा कैसे. मैं इस पूरे, ये वाले पूरे पार्ट को, मैं इस पूरे पार्ट को AR ले लेता हूँ, जिससे मुझे लिखने में ईजी पड़े. ठीक है? अब चलो मैं बताता हूँ. देखो, जब आप इस AR का, यहाँ पे मैंने लिखा AR और फिर यहाँ पे मैंने लिखा है CH2 एंड CH3. जब मैं इसका ब्रोमिनेशन करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट, तो मुझे क्या मिलते हैं? फ्री रेडिकल्स. कौन सा फ्री रेडिकल मिलता है बेटा? ये CH डॉट, ठीक है, एंड CH3 एंड प्लस AR, फिर क्या मिलता है? CH2 एंड
CH2 डॉट। भाई यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रेक हुआ होगा, वो H जो ये दोनों के, ये देखो Br2 है ना, तो ये Br2 क्या जनरेट करते हैं आपको पता ही है। Br2 से क्या मिलता है हमें, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बाहर चला जाता है और आपको ये मिलते हैं, ये वाले रेडिकल्स मिलते हैं, ये रेडिकल्स अल्काइल अराइल फ्री रेडिकल्स और अल्काइल फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अराइल, यहाँ पे देखो अराइल ग्रुप अटैच। तो ये जो फ्री रेडिकल है जहाँ पे जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, हाँ जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो फ्री रेडिकल है, ये पूरा मैं रब करके इसको फिर से, ये जो फ्री रेडिकल है ये 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री, जैसा मैंने वहाँ पे बनाया था आपके लिए। अब क्या होगा, बी आर इस पे अटैच होगा। तो बी आर कहाँ पे अटैच होगा बताओ, अब 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल जो होगा उस पर, मतलब अटैच तो दोनों पे होगा, बट ज़्यादा अमाउंट में कौन होगा, जो फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर। 2 डिग्री से जो बनेगा वो क्या होगा, मेजर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था मेजर। मतलब जब आप ब्रोमिनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल और ये बनता है, फिर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करता है और ये 2 डिग्री ये वाला बनाता है और ये वाला 1 डिग्री बनाता है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री। तो आप केवल स्ट्रक्चर देख के भी, जैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा था, आप केवल स्ट्रक्चर देख के भी आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हो कि सर यहाँ पे देखो आप, सर देखो ना आप, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है। बट अगर मैं फ्री रेडिकल यहाँ पे डालूंगा तो ये 1 डिग्री बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं आपको पूरा मैकेनिज्म बताना है, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बताना है आपको, बस ये एक बार मैकेनिज्म क्लियर हो गया तो आपको फिर उसको कोरिलेट करना है कि सर यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल बनता है, भाई आपने क्या लिखा सर, Br2 और हीट और यूवी लिखा है, तो फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल क्या जनरेट करेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, फिर वो अल्काइल और अराइल फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन, तो एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा सर, तो ये 1 डिग्री हो गया। बट अगर वो रेडिकल यहाँ पे बना दूँ तो 2 डिग्री हो गया। तो सिंस वी नो दैट 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री, तो सर फिर मैं ब्रोमीन कौन से किस पे ऐड करूँगा, 2 डिग्री वाले फ्री रेडिकल पे। तो ब्रोमीन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये मेरा मेजर हो गया, वही तो मैंने किया है। आप इसको सोचना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको इसमें डाउट होगा तो, ओके। बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखो, आप एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और कितना आपको उसमें सोचना पड़ रहा है। बट ये ज़्यादा अच्छा कब लगेगा, जब आप वो रिएजेंट याद कर लोगे, जब आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन याद कर लोगे कि कौन कौन से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। ये नाउ यू हैव CH2OH, यू आर एडिंग व्हाट, HCl इन हीट। देखो आप, अब आपको यहाँ पे सोचना है, सर यहाँ पे भी OH दिख रहा है और यहाँ पे भी OH दिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो HCl ऐड करता हूँ तो क्या करता है, HCl क्या करता है बेटा, दैट रिएक्ट विद HCl रिएक्ट्स विद अल्कोहल एंड फॉर्म अल्काइल क्लोराइड, ये बनाएगा ना अल्कोहल। बट अब मुझे पहचाना, ये अल्कोहल है, हाँ ये अल्कोहल है सर। बट ये अल्कोहल है क्या, नहीं सर, ये तो फिनॉल वाला पार्ट हो गया। जब मेरा OH, अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है, जब आपका OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो वो अल्कोहल नहीं होता, वो क्या होता है, फिनॉल को रिप्रेजेंट करता है। और जब आपका OH ग्रुप किससे अटैच होता है, अल्काइल ग्रुप से, ये बेंजीन रिंग से नहीं, अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, और फिर वो अल्काइल ग्रुप किसी भी चीज़ से अटैच हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट OH जो है वो डायरेक्टली किससे अटैच है, CH2 से, अल्काइल ग्रुप से, तो दैट इज़ नोन एज अल्कोहल। ये क्लियर हो गया, तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको डाउट नहीं रहेगा कि मैं HCl कहाँ पे ऐड करूँ। नहीं तो आपको OH दिखा, अरे मैंने तो पढ़ा था OH को, मुझे OH पे ऐड करना है HCl, OH पे, मेरे पास तो दो OH, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचने का है कि आपने OH HCl किस में ऐड किया था, अल्कोहल में, एंड विच वन इज अल्कोहल, दिस वन इज अल्कोहल बेटा, दिस वन इज अल्कोहल, नॉट दिस वन। सो यू हैव टू ऐड OH एट दिस पोजिशन। So what would be your product? Now it is, you are clear with this concept. So you don't have to touch this OH because this is directly bonded to benzene ring, तो ये ब्रेक नहीं होगा। कौन ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है, और ये Cl, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ओके, गुड, गेटिंग द पॉइंट। ओके, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट बेटा कौन सा है, नेक्स्ट देखो आप, 4th वन, you have this benzene ring, okay, yes sir, no, we don't have any benzene ring, oh sorry,
You have this double bond with CH3, okay, प्लस HI। तो बहुत ही सिंपल हो गया, मेरे पास एक अल्कीन है जिसमें मुझे HI ऐड करना है। तो HI प्रेजेंट है या HCl प्रेजेंट है तो मुझे हमेशा क्या फॉलो करना बेटा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कभी अप्लाई होता है, कभी अप्लाई होता है, सोचो जरा, सोच लिया, कभी अप्लाई होता है, HBr प्लस पेरोक्साइड, HBr प्लस पेरोक्साइड होगा तो ही एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई होगा। HCl HI में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? सो अब आपको याद करने का है, क्या याद करना है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, ये कार्बन है और ये कार्बन है, दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज़ लेस नंबर ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। तो ये आई किधर से अटैच होगा, इस कार्बन से, क्योंकि इस ये वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन नहीं है। बट ये जो है इस बंदे के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। कहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है बेटा, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन अटैच टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो कहाँ पे ऐड करूँगा मैं, इस वाले कार्बन पे ऐड करूँगा, ये वाले कार्बन पे। तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, मेरा प्रोडक्ट होगा, ये देखो आप जरा, CH3 तो पहले से अटैच है और क्या ऐड हो जाएगा I, और ये H कहाँ पे गया होगा, इस कार्बन के पास। तो पहले एक था, अभी कितने हो गए, 2। आपको वो शो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, CH3 CH2 Br N प्लस NaI। अब ये सब आपको, ये तो अब भी एकदम आपको याद रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। दिस इज व्हाट इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड। कौन सा रिएक्शन है, फिन कैलेस्टिन रिएक्शन। दिस इज व्हाट फिन कैलेस्टिन रिएक्शन। अब याद है तभी आप इसको कर पाओगे, और कोई तो इसमें तरीका है नहीं। ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको, मुझे लगता है, तो आराम से आप कर लोगे। क्या लिखोगे बेटा, CH3 CH2 एंड क्या I N प्लस NaBr। ओके, सिंपल सा रिएक्शन है। एंड लास्ट, सिक्स्थ वन, you have this compound alkene plus Br2 but in presence of heat and UV light। ठीक है बेटा, तो अभी अगर आप किसी अल्कीन में हीट और यूवी के लाइट में ब्रोमिनेशन कर रहे हो आप, तो ब्रोमिनेशन कौन सा पोजीशन पे होता है आपको पता है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे नहीं होगा। कौन सा पोजीशन पे होगा, अलाइल पोजीशन। अब मुझे पता है आपको अलाइल पोजीशन तो पता ही। अलाइल क्या होता है बेटा, जब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके बाद वाला जो कार्बन आता है, उसके बाद वाला जो कार्बन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अलाइल। देखिए अलाइल में क्या होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही होता है ना अलाइल ग्रुप। तो यही, अब इसको आपने रिंग फॉर्म में कर दिया। देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, हाँ ये कार्बन है, यस ये दोनों कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसके बाद वाला जो कार्बन है, इसके बाद वाला ये कार्बन है, इधर भी ले लो, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो, अब यहाँ पे आप ऐड कर दो Br और यहाँ पे, तो आपको मिलेगा आपका जो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट है, ये देखो, ये इसको बोलते हैं अलाइल पोजीशन पे क्या करना, ब्रोमीन ऐड करना, अलाइल पोजीशन। ये अलाइलिक पोजीशन है, अलाइलिक। कौन सा पोजीशन है बेटा, अलाइलिक, अलाइलिक पोजीशन। तो अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, ब्रोमीन कहाँ पे ऐड होता है, अभी आपने किया था अल्का, जो अभी आपने ब्रोमिनेशन वाला किया था ना, किसमें, कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें CH2 CH3 था, तो आपने ऐड किया था ब्रोमीन, हीट और यूवी लाइट। ठीक है, तो जब ब्रोमीन, हीट और यूवी लाइट होगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल देखो यहाँ पे नहीं बनेगा, जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे होगा, इन डबल बॉन्ड के एक कार्बन आगे और एक कार्बन पीछे बनने वाला अलाइल पोजीशन पे बनता है। तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनाओ या यहाँ पे बनाओ, ये दोनों पोजीशन क्या है, सेम ही है ना।
सेम ही पोजीशन दिख रहा है ना भाई, ये पोजीशन ले लो आप, और ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम है, ये पोजीशन और ये पोजीशन। तो यहाँ पे जो कार्बन अटैच है तो ये कार्बन, ये दोनों कार्बन भी सेम है क्योंकि सेम एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे मैं ब्रोमीन ऐड कर दूँ या यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके बेटा, डबल बॉन्ड पे नहीं ऐड करते जब भी हम ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट और यूवी लाइट, तो वहाँ पे नहीं करेंगे। और फ्री रेडिकल कौन सा बनता है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, देखो जरा। तो आपको थोड़ी सी और यहाँ पे, अब ये कार्बन के पास ये डॉट है, तो डॉट का मतलब ये फ्री रेडिकल है। अब ये फ्री रेडिकल किस में है, रेजोनेंस में, दिख रहा है ना, देखो जरा, ये बताया था मैंने, ये रेजोनेंस है ना भाई, ये रेजोनेंस वाली पट्टी तो है, ये रेजोनेंस ही तो है। कैसे, देखो जरा, कैसे घुमा सकते हो आप, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो, सॉरी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया क्योंकि हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक डॉट यहाँ पे आ गया, दिख रहा है, सेम है। अब ये जो मैंने इधर मूव कराया था, आप देखो, आप इसको इधर भी मूव करा सकते हो। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, फिर से मैंने यहाँ, अब डॉट आपने यहाँ पे लगाया तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। अगर आप डॉट यहाँ पे लगाओगे तो आपका रेजोनेंस कहाँ पे चला जाएगा, देखो जरा, फिर से मूव करा तो ये डॉट यहाँ पे चला जाएगा। ये अगर, एक मिनट, ये अगर मैं मूव करा तो देखो, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करे और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करे, ओ सॉरी, यहाँ पे मूव करे, तो इसका एक जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन पे जाएगा, तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये, तो ये जो पूरा एरिया है, मैं इसको कवर करता हूँ, ये जो पूरा एरिया है वो सेम ही है। कितने कार्बन इसमें, इनको 1 2 3 4, देख लो ना आप, यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी कितने इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4, तो ये पूरा एरिया रेजोनेंस में है। तो जो डबल बॉन्ड है उसके एक पोजीशन आके या एक पोजीशन पीछे आपको ब्रोमीन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी और सनलाइट। ओके, सो ये पूरा हो गया बेटा आपका प्रिपरेशन मेथड प्लस दिस solution for example या explanation of example 10.4 as well as in text question. Even though if you are getting any doubt, then you can ask me. Okay, you can ask me. So thanks for attending today's lecture. Thanks for attending today's lecture. Okay, thank you.